Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and in this video we are going to start a new chapter, that is electrochemistry. This is the second chapter of physical chemistry of 12th standard. This chapter carries about 6 to 8 marks in board exams. Generally, one question from this chapter is asked in JEE and in NEET exams. Electrochemistry contains a very few theories and lots of numerical problems. In today's video, we are going to discuss a very important topic, that is electrochemical cell. To understand the whole chapter, we have to understand this principle first. Along with this, we are going to cover many subtopics like introduction of electrochemistry, application of electrochemistry, half cell, full cell, oxidation half, reduction half, cell representation and salt bridge. So, let's start our chapter. So, what is electrochemistry? As we can see that electrochemistry is made up of two words, electro and chemistry. Electro means electricity and chemistry means chemical reactions. That means electrochemistry is a branch of physical chemistry which studies the chemical reaction where electricity is involved. Now, electricity can be involved in two ways. First, suppose a chemical reaction is spontaneous. Now, what is meant by spontaneous? Spontaneous means जो reaction अपने आप होते हैं, which carries by their own. So, ऐसे reactions में electricity produce होती है. So, first category है ऐसे chemical reactions which are spontaneous and which can produce electricity. Now there is another category. अब कुछ ऐसे reactions होते हैं which are chemical reactions of non-spontaneous type. Now non-spontaneous means जो अपने आप नहीं हो सकते हैं, and in that case we have to use electricity to produce that reaction. So there are two types: chemical reactions which are spontaneous, which produces electricity, and the second type is the chemical reactions which are non-spontaneous, which are carried out by using electricity. So ये दोनों ही reactions में electricity use होती है. So अगर chemical reaction spontaneous है और वो electricity produce कर रहा है, that type of conditions are studied in electrochemical cell. Now second category, जो reactions non-spontaneous हैं जहाँ पे हम electricity use कर रहे हैं, such chemical reactions are studied in electrolytic cell. So हमारे पास दो कैटेगरी हैं. So कौन सी कैटेगरी है? First is electrochemical cell. Now what is electrochemical cell? Electrochemical cells are those cells where chemical reactions which are spontaneous are used to produce electricity. नाउ सेकेंड कैटेगरी कौन से हैं? सेकेंड कैटेगरी में आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. नाउ ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, और क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ होती है. वाई? टू परफॉर्म दैट रिएक्शन. सो अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है देन इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है देन इट इज स्पॉन्टेनियस. और ऐसे रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, दोज रिएक्शंस आर एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन. नो, रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक आपने 10th में पढ़ा था, 11th में आपने पूरा एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन का. फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन. यू ऑल नो दैट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. जनरली एक प्रिंसिपल ये है कि रिडक्शन जो है हमेशा एनर्जी स्टोर करता है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनर्जी रिलीज करता है. नाउ ये जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज एक्चुअली फ्री एनर्जी. कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से? यू नो दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. तो अगर थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से जाएं तो जो फ्री एनर्जी है दैट इज डेल्टा जी, ये रिलीज होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ इसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड
nor be destroyed. It can be transferred from one form to another form. So in electrochemistry, in electrochemical cell, जो redox reactions होते हैं उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है उस फ्री एनर्जी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यही प्रिंसिपल हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टडी करना है। हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, देन इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और सेकेंड प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में तो दैट विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब कंडीशन ऐसी क्यों है? तो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट इसलिए हो पा रहा है बिकॉज इन दिस केस जो भी हम रेडॉक्स रिएक्शन यूज कर रहे हैं दैट रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस है तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और ये जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें स्टडी करना है। जबकि इन सेकेंड कंडीशन जो हम रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करने वाले हैं दैट रेडॉक्स रिएक्शन इज एक्चुअली अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है सो ऐसे रिएक्शन को कैरी करने के लिए वी नीड एनर्जी। सो जो एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे जिससे रिएक्शन प्रोसीड होगा, और उसको हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। सो इन टुडेज वीडियो एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आगे के वीडियोज में वी विल कवर दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को हम अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दो एप्लीकेशंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। फर्स्ट वाज यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फ्री एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू परफॉर्म दोज रिएक्शंस विच आर नॉन स्पॉन्टेनियस। थर्ड कंडीशन ये है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैनी कंपाउंड्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, और भी कई सारे केमिकल कंपाउंड्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड, बैटरीज जो कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि आपकी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इट इज़ एक्सेप्टेड एंड इट इज़ लेस पॉल्यूटेड। आप लोग ये जानते ही होंगे कि अभी हमारी जो कंट्री है वो पेट्रोल या डीजल के व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही है। उसका रीज़न आप जानते ही हैं, जो पॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का लेस है। आई एम नॉट सेइंग कि वो पॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल यूज़ कर रहे हैं दैट विल कॉज पॉल्यूशन। जब आप आफ्टर दैट यूज़ जो बैटरी को आप डंप करते हैं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, देन इट इज़ एक्सेप्टेड। वाई? बिकॉज ये लेस पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। नाउ जो लास्ट कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो प्रिंसिपल है उसकी मदद से हम कई सारे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए यूजफुल होंगे। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, which is also known as Voltaic cell or galvanic cell. This cell works on the principle of electrochemistry, where the chemical energy of a redox reaction is converted into electrical energy. अब यहाँ जो हम स्पेशल सेल जो सेटअप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डैनियल सेल, जहाँ पे एनोड हमारा जिंक होता है एंड कैथोड हमारा कॉपर होता है। अब ये जो सेल हैं इसके हम सेटअप को स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन है दैट इज जिंक सल्फेट। सिमिलरली राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर भी एक सॉल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट। तो ये जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इन्हें हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सॉल्यूशंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस। ऐसी कंडक्टिविटी को हम बुलाते हैं आयनिक कंडक्टिविटी। सो यहाँ पे हमारे
LHS में जो सॉल्यूशन है दैट इज जिंक सल्फेट, यहाँ पे जो हमारे RHS में सॉल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट। और ये सॉल्यूशंस क्या हैं? दीज आर इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ आयंस विच इज नोन एज आयनिक कंडक्टिविटी। नाउ इन सॉल्यूशंस के अंदर आप देख सकते हैं दो रॉड्स डिप किए हुए हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जिंक का रॉड डिप किया हुआ है, राइट साइड में आप देख सकते हैं कि कॉपर का रॉड डिप किया हुआ है। अब ये जो रॉड्स हैं जिन्हें आपने सॉल्यूशन में डिप किया है इन्हें हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये स्पेशल मेटल या नॉन मेटल के रॉड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं वो है जिंक और कॉपर। अब यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जिंक को हमने स्पेसिफाई किया है कि जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल हैं उसके रूल्स में ये कहा गया है कि जो भी इलेक्ट्रोड या जो भी पार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखने वाले हैं दैट इज एनोड, और जो पार्ट हम राइट हैंड साइड में लिखने वाले हैं दैट इज कैथोड। तो हमारा लेफ्ट पोर्शन एनोड है, राइट पोर्शन कैथोड है। इतना आपको क्लियर हो गया? ओके। अब ये एनोड और कैथोड की चार्ज की बात करते हैं। तो एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, आप देख सकते हैं एनोड नेगेटिव है, और कैथोड जो यहाँ पे हमारा वो है पॉजिटिव है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए छोटा सा एक तरीका है, ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप LOAN दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन, अगर आप लोन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, एक्चुअली ये एक मिनेमोनिक्स होते हैं। मिनेमोनिक्स आप समझते होंगे कि ये एक ट्रिक्स होती है, मेमोरी ट्रिक्स होती है जिसकी मदद से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो मिनेमोनिक्स में हमने लोन का कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है जो कि हमेशा केमिस्ट्री में यूज़ होता है। अब ये लोन का मीनिंग क्या है? तो लोन में जो L है इट रिप्रेजेंट LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ जो O है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो A है दैट मीन्स एनोड, और जो यहाँ पे N है दैट मीन्स नेगेटिव। अब अगर आप पूरे इस लोन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है और उसका चार्ज नेगेटिव होता है। यानी अगर आपने इस लोन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप उसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट को राइट साइड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट साइड जो होगा, राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होगा? इन कैथोड, और उसका चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड होता है, यहाँ रिडक्शन होता है, ये कैथोड होता है और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। नाउ अब इन इलेक्ट्रोड्स को आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें सॉल्यूशन में डिप किया है। तो जो इलेक्ट्रोड है दैट मीन्स जिंक एनोड, और ये जो सॉल्यूशन है दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये दोनों एक साथ कंबाइनली बुलाए जाते हैं हाफ सेल। इन्हें क्या बोलते हैं हम? हाफ सेल। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड में जाएं तो यहाँ पे ये जो कॉपर कैथोड है जिसे डिप किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इन दोनों को अगर हम कंबाइनली अगर देखने जाएं तो इसे भी हम बुलाएंगे हाफ सेल। यानी हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं। एक हमारा हाफ सेल जो है वो LHS में है, दूसरा हाफ सेल जो है हमारा वो RHS में है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है रिएक्शन के टाइप का। तो अभी आपने पढ़ा लोन के कॉन्सेप्ट में कि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है यहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो राइट वाला पार्ट होता है यहाँ पे आपका रिडक्शन होता है। तो इसीलिए हम इस लेफ्ट वाले पार्ट को, हाफ सेल को, हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ भी बुलाते हैं। तो सिमिलरली जो हमारा राइट हैंड साइड पार्ट है यहाँ पे हम रिडक्शन रिएक्शन को देखते हैं, इसलिए हम इसे रिडक्शन हाफ बुलाते हैं। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि लेफ्ट वाले हाफ को हम हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ बुलाते हैं, राइट वाले पार्ट को हम हाफ सेल या रिडक्शन हाफ बुलाते हैं। अब आप जानते हैं कि एक हाफ सेल दूसरे हाफ सेल के साथ मिलकर क्या बन जाता है? फुल सेल। तो ये जो लेफ्ट और राइट इन दोनों पार्टों को अगर हम साथ में देखने जाएं तो इट इज़ अ फुल सेल। या फिर ये जो ऑक्सीडेशन पार्ट है या रिडक्शन पार्ट है, अगर हम इन दोनों को साथ में देखने जाएं तो इट इज़ रेडॉक्स। तो ये हमारे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको देखने को मिलेगा। अब इनके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, तो चलिए रिएक्शन की बात करते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जब जिंक के एनोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो यहाँ पे एक हाफ सेल क्रिएट होता है। अब इस हाफ सेल में रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे जिंक जो है अपना ऑक्सीडेशन करता है, जो कि अभी आपने लोन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा। अब हम इन हाफ सेल्स के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज एनोड पार्ट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, दिस जिंक एनोड। तो इक्वेशन होगी जिंक जो कि हमारा इलेक्ट्रोड है विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, ये ऑक्सीडेशन करेगा और ये रिलीज करेगा जिंक +2 अलॉन्ग विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो जिंक है हमारा ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें से जिंक के आयंस निकलेंगे जो कि Zn+2 हैं और ये आयंस कहाँ जाएंगे, ये आयंस जाएंगे इन द सॉल्यूशन। यानी आप कह सकते हैं कि ग्रेजुअली सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा और ग्रेजुअली ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका वेट कम होने लगेगा, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये टूट के सॉल्यूशन में जा रहा है। सॉल्यूशन में जा रहा है इसलिए जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सॉल्यूशन में, और साथ में ये जो जिंक एनोड है जो कि हमारा इलेक्ट्रोड है इसका वेट कम होगा। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारा जो है कॉपर कैथोड है। अब यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, तो रिडक्शन के इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं कि कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। यानी होगा क्या कि जो कॉपर +2 है ये कॉपर +2 कहाँ प्रेजेंट है, इन द सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन से जाके इलेक्ट्रोड पे जो कि हमारे कैथोड पे यहाँ पे जाके धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, कॉपर सॉलिड। यानी ग्रेजुअली ये जो हमारा कॉपर कैथोड है इसका वेट बढ़ने लगेगा और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली कम हो जाएगा। अब दोनों को साइड बाय साइड हम कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में जिंक का जो एनोड है उसका वेट कम हो रहा था, राइट साइड में जो कॉपर का कैथोड है उसका वेट बढ़ रहा था। ये कम इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑक्सीडेशन में जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो जो ब्रेक हो रहा है उसके कारण जिंक के आयन सॉल्यूशंस में जा रहे थे। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखने जाएं जो कॉपर का आयन है वो सॉल्यूशन में से कॉपर के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा था, जिसके कारण से कॉपर के आयन सॉल्यूशन में कम हो रहे थे। नाउ अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ समझने जाएं तो हमें इससे क्या समझना है कि हमें ये समझ में आया कि ग्रेजुअली सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा क्योंकि यहाँ पे जिंक बढ़ रहा है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो वी कैन से कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें समझना ज़रूरी है कि चार्ज क्यों बढ़ रहा है। तो अब यहाँ जानते हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। अब ऐसे कंडीशंस में दोनों तरफ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी हमारा सेल जो है वो पोलराइज हो जाएगा। ओके, अब ये सेल वर्क कैसे कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब ऑक्सीडेशन करने से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं और ये सर्किट में फ्लो होके फ्रॉम एनोड टू कैथोड जब जाते हैं तो करंट फ्लो होता है। अब यहाँ डायरेक्शन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, फ्रॉम LHS टू RHS। हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि करंट का फ्लो है, आई का जो फ्लो है जिसे हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ये ऑपोजिट है। दिस इज फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट फ्लो करेंगे जबकि करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेंगे, करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन और करंट के फ्लो का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यानी हमने इस सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डायरेक्शन जो है वो आपको ये गैल्वेनोमीटर बताएगा। गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो अपने डिफ्लेक्शन से हमें शो करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और जो निडल का डायरेक्शन है वो हमें शो करेगा कि करंट का डायरेक्शन किस साइड है। जहाँ के आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि जिंक ही एनोड क्यों बना और कॉपर ही कैथोड क्यों बना। तो उसको समझने के लिए भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज का जानना ज़रूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज आपने 10 से पढ़ा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मेटल
मोर रिएक्टिव होगा, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर पोजीशन पे होगा वो एनोड बनेगा, और जो मेटल कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होगा, आई एम नॉट सेइंग कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में लेस रिएक्टिव ही हो, जिंक के कंपैरिजन में कॉपर की रिएक्टिविटी लेस है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा दे फॉर्म्स कैथोड, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं दे फॉर्म एनोड। तो यहाँ से हम लोग एनोड और कैथोड डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक दूसरा प्रिंसिपल है, दैट इज ईएमएफ सीरीज, जो आगे मैं डिस्कस करूँगा। उसके हिसाब से भी हम एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट फिलहाल आपको मैंने सिर्फ रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से बताया कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा इट विल फॉर्म एनोड, और लेस रिएक्टिव मेटल होगा इट विल फॉर्म कैथोड। अब हम ये जो एनोड और कैथोड के जो रिएक्शंस हैं इनको हम कंबाइन कर देते हैं। तो एनोड का रिएक्शन आपको ध्यान है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जिंक जो है वो Zn+2 एंड साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। सिमिलरली जो कॉपर है वो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर प्रोड्यूस कर रहा था। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा जिंक प्लस कॉपर +2 गिव्स कॉपर प्लस जिंक +2। अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था दैट वाज ऑक्सीडेशन, हमारा जो ये सेकंड इक्वेशन था कॉपर के केस में दैट वाज रिडक्शन, और अब ये दोनों जब कंबाइन हो गए देन इट इज़ रेडॉक्स। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्रिएट हो रहा था, इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही करंट प्रोड्यूस हुआ। अब इस सेल के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो है चार्ज का एक्यूमुलेशन, जिसको मैंने पोलराइजेशन बताया। अब इस कॉन्सेप्ट में आपने स्टडी किया कि ग्रेजुअली जो है सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 एक्यूमुलेट होगा, यहाँ सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 के चार्ज के कम होने के कारण SO4-2 का चार्ज एक्यूमुलेट होगा। यानी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे जो राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इस कारण से सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे फॉल हो जाएगा, या फिर जहाँ बोल सकते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा, और सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग, सेल काम करना बंद कर देगा, सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सेटअप हमें इसमें ऐड करना है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो चलिए सॉल्ट ब्रिज को समझते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज के नाम से यहाँ पे पता चलता है कि इसमें जो दो पार्ट है सॉल्ट एंड ब्रिज। सॉल्ट मीन्स यहाँ सॉल्ट यूज होने वाला है, और ब्रिज मीन्स जो दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बहुत सारे सॉल्ट्स इनमें यूज हो सकते हैं। और ब्रिज इसलिए बोला गया है क्योंकि इसने इस लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा ऑक्सीडेशन हाफ था उसे राइट हैंड साइड जो कि हमारा रिडक्शन हाफ है, इन दोनों को आपस में आप देख सकते हैं इसने कनेक्ट किया। तो सॉल्ट ब्रिज एक तरह का इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब होता है, जो कि हमारे दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, और इसमें हम वेरियस सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। अब ये जो सॉल्ट्स हम यूज़ करते हैं उनको हम कैसे चूज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है और राइट साइड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो एक्यूमुलेशन है उसके कारण हमारा जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है। अब सेल जो है वो फंक्शनिंग रहे, सेल काम करता रहे, उसके लिए हम इन चार्जेस को जो है वो फिनिश करना है। ये चार्जेस को फिनिश करने के लिए हमको इनके लिए एक ऑपोजिट चार्ज देना पड़ेगा, उसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं। यानी सॉल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन वो ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है उसको वो ओवर कर दे, यानी हमारे सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं। अब न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होगी? अब न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब हुआ कि अगर मुझे यहाँ पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करना है, तो मुझे इस साइड नेगेटिव चार्ज भेजना पड़ेगा, और सिमिलरली अगर मुझे राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज को फिनिश करना है तो मुझे पॉजिटिव चार्ज को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। यानी हमारे सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो यूज़ होने वाला सॉल्ट है उसके अंदर जो आयंस यूज़ होंगे, जैसे सपोज मैंने अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया, तो अब अमोनियम नाइट्रेट के अंदर हमारे पास दो आयंस हैं, एक है NO3-, दूसरा है NH4+। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो NH4+ है वो RHS की तरफ जाएगा,
क्यों? क्योंकि RHS में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि एनोड पार्ट था, हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो उसको फिनिश करने के लिए हमारा नाइट्रेट आयन है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अब कंडीशन ये है कि जो ये दोनों आयन्स हैं इनकी आयनिक मोबिलिटी, अब आयनिक मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है आयन्स की स्पीड, आयन्स जो माइग्रेट कर रहे हैं उसकी स्पीड, उसकी मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अब सेम क्यों होनी चाहिए उसका रीज़न आप जानते हैं, हमें दोनों तरफ के चार्ज जो हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। तो अगर नाइट्रेट आयन यहाँ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब आ रहा है चार्ज को फिनिश करने के लिए, सेम उतनी ही स्पीड में अमोनियम आयन्स को भी राइट साइड जाना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ का चार्ज साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज होते रहे। तो यानी मोबिलिटी हमें सेम चाहिए दोनों आयन्स की। अब इसमें एक कंडीशन और आई है, आप जानते हैं कि कभी भी जो सॉल्ट होते हैं उनके आयन्स इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करते, उनके लिए उसको चाहिए कोई मीडियम। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसमें जो हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए मीडियम। और मीडियम में हम लोग जनरली दो मीडियम यूज़ करते हैं। एक हमारा मीडियम होता है अगर अगर मीडियम, ये आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी जानते होंगे, अगर अगर मीडियम एक जेली टाइप का मीडियम होता है। और दूसरा हम मीडियम यूज़ करते हैं जिलेटिन, ये भी एक जेली टाइप का मीडियम है। अब ये जेल जो होते हैं इसके अंदर हम सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्यों? ताकि आयंस के मूवमेंट के लिए उन्हें चाहिए मीडियम। तो ये जो अगर अगर या फिर जिलेटिन है वो हमारे सॉल्ट्स के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। इन मीडियम की मदद से जो सॉल्ट्स हैं वो माइग्रेट करते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, इसलिए सॉल्ट ब्रिज में से राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है। अंदर में जो हम सॉल्ट यूज़ करेंगे उन सॉल्ट्स के अंदर आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए और उन्हें एक प्रॉपर मीडियम में हम डिसॉल्व करते हैं। अब क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे सॉल्ट्स डिफ्यूज़ ना हो जाएं, इसलिए हम जो एंड होते हैं उनके सॉल्ट ब्रिज के जो एंड होते हैं उन्हें हम ग्लास वूल से ब्लॉक कर देते हैं। ये जो ग्लास वूल है ये डिफ्यूज़ नहीं होने देता आयंस को, हाँ, लेकिन आयंस के मूवमेंट को अलाउ करता है। यानी सॉल्यूशन में हमारा जो आयन है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो आयंस माइग्रेट हो रहे हैं उनके लिए वो रास्ता देगा। तो यहाँ पे ग्लास वूल जो है ये एंड्स को ब्लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। समटाइम कॉटन भी यूज़ करते हैं या फिर ग्लास वूल यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक और हमें कंडीशन डिस्कस करनी है कि हम जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इन इलेक्ट्रोड्स को फोकस करना है कि हम इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने जिंक और कॉपर जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया, कभी कभी सॉल्यूशन में हम लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं। अगर मैंने सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ किया और मेरा जो सॉल्ट ब्रिज है अगर मैंने उसमें क्लोरीन आयन यूज़ कर लिया तब प्रॉब्लम हो सकती है। वाई? अब जानते हैं कि अगर मेरे इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर क्लोरीन यहाँ पे आ जाए तो क्लोरीन एक्चुअली हमारे जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है उसके साथ रिएक्ट करेगा और इट विल फॉर्म AgCl। और आप जानते हैं कि जो AgCl है वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। आप जानते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लेस है, इट इज़ पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये जो है वो PPT बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। इस कारण से हमारा जो सेल का जो कंपोजिशन है वो खराब हो जाएगा एंड सेल विल स्टॉप वर्किंग। सो एक और कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट सेलेक्ट करेंगे वो सॉल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी साइड के सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करके किसी तरह का प्रेसिपिटेट बनाए। अगर प्रेसिपिटेट बनाएगा तो रिएक्शन जो है वो हमारा सेल का स्टॉप हो जाएगा और सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग। सो ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन है जो हमें सॉल्ट ब्रिज के लिए ध्यान रखनी। सो फाइनली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, राइट वाले हम पार्ट को बोलते हैं रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज़ एनोड, रिडक्शन हाफ के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज़ कैथोड। एनोड को अगर हम सॉल्यूशन में डिप करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जिंक का। कैथोड को अगर हम सॉल्यूशन में डिप करें तो यहाँ पे कॉपर के कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड के ऑक्सीडेशन के कारण ग्रेजुअली एनोड का जो वेट है वो डिक्रीज हो जाता है। कैथोड के सरफेस पे रिडक्शन होता है, इस कारण से कैथोड का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पे जो है सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इस चार्ज के एक्यूमुलेशन से सेल जो है वो वर्क करना स्टॉप कर सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं।
सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होता है यू शेप का, जिसके अंदर हम सेम आयनिक मोबिलिटी वाले सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं। ये सॉल्ट्स का फंक्शन है कि जो सेल के अंदर चार्ज जो हुआ है एक्यूमुलेट, उसे न्यूट्रलाइज करना। इसलिए सॉल्ट ब्रिज से ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस सॉल्यूशन में मूव करते हैं और ये सेल को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस मूवमेंट के लिए, आयंस के डिफ्यूजन के लिए हम लोगों ने यहाँ ग्लास वूल लगा रखा है, जो कि एंड्स पे ट्यूब के अटैच किया जाता है। इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसका डायरेक्शन हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। इस डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं देन वी कैन यूज़ गैल्वेनोमीटर। अगर हम इस सेल के वोल्टेज को स्टडी करना चाहते हैं देन वी कैन यूज़ वोल्टमीटर। अगर हम सेल के करंट को स्टडी करना चाहते हैं देन वी कैन यूज़ एमीटर। और अगर आप सेल के एग्जैक्ट या एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज़ पोटेंशियोमीटर। तो ये हुआ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ वी विल डिस्कस सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन है पहले हमें उन्हें समझना पड़ेगा। सो अभी जो हमने सेल यूज़ किया दैट वाज डैनियल सेल, जहाँ पे एनोड जिंक था और कैथोड कॉपर था। तो सबसे पहले हम लोग एनोड की बात करते हैं, जहाँ पे जिंक जो है हमारा सॉलिड इलेक्ट्रोड था जिसने अपना ऑक्सीडेशन किया और उसने रिलीज़ किया था Zn+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हमें लिखना है जिंक और हमें लिखना है साथ में सॉलिड, देन एक स्लैश और वी हैव टू राइट Zn+2 aqueous। तो यहाँ पे जो ये जिंक है सॉलिड, इसका मतलब हमारा जो जिंक है वो एक इलेक्ट्रोड है। ये स्लैश का मतलब जिंक और Zn+2 के बीच में एक इंटरफेस है और Zn+2 जो है वो मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है, जबकि ये जो जिंक है एक सॉलिड फॉर्म में है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ बिकॉज जिंक जो है इसका यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे 2 है। तो ये वाला जो पार्ट है इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, जो कि एक हाफ सेल है। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन हाफ की बात करें तो हमें कॉपर का जो रिडक्शन है उसके इक्वेशन को देखना है। तो हमारे इक्वेशन में क्या था, जो कॉपर+2 था जो कि सॉल्यूशन में था एक्वस मीडियम में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और उसने बनाया कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन वो कौन सा रिएक्शन है, इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। अब इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में कैसे एक्सप्रेस करें, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, कॉपर+2 एक्वस स्लैश देन कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पे जो कॉपर+2 एक्वस का मतलब है कि जो कॉपर+2 है वो सॉल्यूशन में अवेलेबल है। ये स्लैश का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एक इंटरफेस है, क्योंकि ये मीडियम में है और ये एक इलेक्ट्रोड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो इनिशियली है वो सॉल्यूशन में +2 है और फाइनली जो है वो 0 हुआ है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इट रिप्रेजेंट रिडक्शन हाफ, जो कि दूसरा हाफ सेल है। अगर अब इन हाफ सेल्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारा फुल सेल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे कि हमारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कंबाइन करके रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं। तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन पहले देख लेते हैं क्या होगा। तो रिएक्शन विल बी जिंक प्लस कॉपर+2 गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। तो ये हमारा जो रिएक्शन था ये कौन सा था, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसी तरह रिप्रेजेंटेशन भी हम रेडॉक्स का लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, तो जिंक स्लैश Zn+2 डबल स्लैश कॉपर+2 स्लैश कॉपर। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमने जिंक यूज़ किया इट इज़ सॉलिड, दूसरा जो जिंक है वो एक्वस है। ये वाला पार्ट जो था हमारा लेफ्ट पार्ट दैट इज़ ऑक्सीडेशन पार्ट, और मैंने आपको इनिशियली समझाया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑक्सीडेशन शो करता है, लोन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज़ किया था। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे कॉपर+2 है ये एक्वस फॉर्म में है और जो ये कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में है। ये वाला जो पार्ट है हमारे रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है और ये हमारा RHS पार्ट है। अब ये जो दोनों पार्ट कंबाइन हो जाते हैं तो हमारा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं फुल सेल रिप्रेजेंटेशन, जबकि पहले हमने जो डिस्कस किया दैट वाज हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे जो यूज़ होने वाले लाइन्स हैं हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइन यूज़ किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 लाइन यूज़ हो रहा है दैट मीन्स इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया है। सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज़ करते हैं आप जानते हैं कि विदाउट सॉल्ट ब्रिज जो है सेल जो है आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप वर्किंग। यानी आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है। जैसे कि अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे सपोज जिंक सॉलिड गिव्स Zn+2 एक्वस सिंगल स्लैश कॉपर+2 स्लैश कॉपर। अब इस इक्वेशन आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल सेल स्लैश यूज़ किया है। दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जो है वो यूज़
नहीं हो रहा है, यानी ये सेल आफ्टर सम टाइम काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर इसी सेल को सॉल्ट ब्रिज के साथ रिप्रेजेंट करना है तो इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा जिंक गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वस एंड साथ में मुझे डबल स्लैश यूज़ करना है, देन कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स कॉपर। तो जब हम डबल स्लैश यूज़ कर रहे हैं यानी दैट मीन्स सॉल्ट ब्रिज यूज़ हुआ है, अगर मैं सिंगल स्लैश यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं हुआ है। और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन जो है रेडॉक्स उसे जानना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा है। देन आफ्टर दैट आप सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में एनोड पार्ट को यानी ऑक्सीडेशन पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट साइड में कैथोड पार्ट यानी रिडक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड या एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन है ये आपको उसमें मेंशन करना है। साथ में आपको सॉल्ट ब्रिज आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको वो भी सेल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको रेडॉक्स रिएक्शन दिया होगा, आपको उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है। सो फाइनली लास्ट में एक बार हम सॉल्ट ब्रिज के यूज़ को स्टडी कर लेते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, और अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करेंगे तो क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड पे एक्यूमुलेट होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड पे एक्यूमुलेट होगा। सेकेंड, कई सारे सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ दो सॉल्यूशंस कांटेक्ट में होते हैं बट उनके बीच में पोरस मेम्ब्रेन या पोरस डिस्क होता है। ऐसे केसेस में दोनों सॉल्यूशंस के बीच में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसके लिए इस सेल के डायग्राम को आप देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे भी लेफ्ट में जिंक यूज़ हुआ है जो कि एनोड है, राइट में कॉपर यूज़ हुआ है जो कि कैथोड है। आप देख सकते हैं एनोड की जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके कारण सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 आयन रिलीज होंगे। कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में से कैथोड पे जा रहा है इसलिए धीरे धीरे सॉल्यूशन में कॉपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ जिंक का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड यानी जिंक से लेके कॉपर की तरफ है और करंट का फ्लो जो है वो अपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है बिकॉज करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस पूरे डायग्राम में सिर्फ एक ही डिफरेंस जो आप देखने को मिलेगा वो है ये पोरस डिस्क। ये जो दोनों सॉल्यूशंस इसके बीच में पोरस डिस्क है। अब यहाँ पे धीरे धीरे आप जानते हैं क्योंकि जो सेल है नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो सेल पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो जंक्शन है बाउंड्री है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे एक स्पेशल पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसे बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसके कारण सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि अभी हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करेंगे तो जो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो क्रिएट नहीं होगा। अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो इट विल क्रिएट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज था, जो रिएक्शन था वो स्टॉप हो जाएगा और जो वोल्टेज है वो ग्रेजुअली ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा, एक तो आपका जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, आपका जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा था वो भी स्टॉप हो जाएगा। ये सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देते लेकिन ये आयंस के फ्लो को परमिट करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं तो हमारे जो ऑपोजिट आयंस होते हैं जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। आप जानते हैं कि जो नेगेटिव आयन होता है वो एनोड की तरफ मूव करता है बिकॉज एनोड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता था, और जो पॉजिटिव आयन है सॉल्ट ब्रिज का वो कैथोड की तरफ मूव करता है क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। यानी सॉल्ट ब्रिज के प्रेजेंस से सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, सेल में चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को स्टॉप करता है, आयंस के फ्लो को मेंटेन करता है। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को स्टडी किया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके वर्किंग को स्टडी किया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वर्किंग में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ा। सॉल्ट ब्रिज में यूज़ होने वाले सॉल्ट्स, उनकी लिमिटेशन, उनके एप्लीकेशंस, इन सभी चीज़ों को हमने स्टडी किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।